امی، میری شرٹ کس نے جلائی؟ میں آفس کے لیے آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ فیضان غصے سے دہاڑا اور شبانہ بیگم کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا، میں نے تو اس بے وقوف نازیہ سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ یہ سن کر فیضان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ کس بے وقوف لڑکی کو ابو نے میرے گلے باندھ دیا ہے؟ وہ اپنی کم سن 16 سال کی بیوی پر بہت غصہ تھا، جو اس کے ابو کی لاڈلی بھتیجی تھی۔ نازیہ کی بچی! وہ غصے سے تمتماتا ہوا کمرے میں گیا، پر وہ وہاں سے غائب تھی۔ لیکن اسے دروازے کے پیچھے چھپا دیکھ کر فیضان کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے نرم وجود کو محسوس کر کے اس کے جذبات بے قابو ہوئے تھے۔ تو بتاؤ میری جان، تمہیں کیا سزا دوں؟ پلیز چھوڑیے نا، ایسے کیسے جانے من، آج تو تمہیں سزا مل کر ہی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اور ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے جب سے اپنی بیماری کا معلوم ہوا ہے، میرا دل کڑتا رہتا ہے۔ احسان بھائی، میری بیٹی کا میرے بعد کیا ہوگا؟ وہ نم آنکھوں سے کہہ رہے تھے۔ نازیہ جو ٹرے میں اپنے تایا کے لیے ناشتہ لیے چلی آ رہی تھی، دہلیز پر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ کس بیماری کی بات کر رہے تھے؟ نازیہ مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے رئیس۔ تم مجھے ایسے کہہ کر پرایا کر رہے ہو، اور تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور نازیہ کا خود سے خیال رکھو گے۔ وہ مسکرا کر اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب، یہ بیماری چھوٹی نہیں ہے، آخری سٹیج ہے، اور مجھے معلوم ہے میری زندگی بس کچھ سانسوں کی محتاج ہے۔ سلمیٰ کے جانے کے بعد سے اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے، اور اگر کل کو وہ اکیلی رہ گئی تو سوچو میری روح کو کیسے سکون ملے گا۔ اس سے زیادہ نازیہ میں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اندر آئی۔ ابو، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو معمولی سا بخار ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا تایا جان؟ وہ ان سے کہہ کر اپنے تایا جان کی طرف پلٹی۔ وہ اداسی سے سر جھکا گئے۔ وہ جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ بیٹی تم جاؤ، اپنے ابو کا خیال رکھو۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پائے۔ تایا جان، آپ جانتے ہیں مجھے گھر کے کام نہیں آتے۔ میں نے ابو سے کہا تھا میں سیکھ جاتی ہوں، پڑھائی کو چھوڑیں، لیکن ابو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں پڑھائی پہلے، باقی کام بعد میں۔ یہ کام زندگی کا حصہ ہے، پڑھائی کے بعد سیکھ جانا۔ میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور نوکرانی کے ہاتھ کا کھانا ابو کو پسند نہیں آتا، بس دل مار کر کھا لیتے ہیں۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے اپنے تایا جان کو ساری باتیں بتانے لگی۔ رئیس، تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اتنے سالوں سے تم کس پریشانی کا شکار ہو۔ نازیہ، اپنا اور اپنے ابو کا سامان پیک کرو، تم دونوں ابھی میرے ساتھ میرے گھر چل رہے ہو۔ وہ تیزی سے اٹھے اور نازیہ کو حکم دیا۔ لیکن تایا جان، تائی جان کو میرا وہاں آنا پسند نہیں ہے، کہتی ہیں بیٹوں والا گھر ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو احسان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بیٹی، وہ تمہارے کزنز ہیں، اور تم ان کو بہنوں کی طرح پیاری ہو، وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں خود بات کروں گا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ گیا ہوں، بہت کر لیا کام، اب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اب اپنے بھائی اور تمہارا خیال رکھوں گا۔ وہ سنجیدگی سے ہر فیصلہ منٹوں میں طے کر چکے تھے۔ نازیہ نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، وہ الجھن میں تھے۔ رئیس، ابھی بھی سوچ رہے ہو؟ وہ غصے سے پوچھنے لگے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں تمہاری بیٹی میرے تینوں بیٹوں کے درمیان محفوظ رہے گی۔ میں نے ان کی پرورش کی ہے، اور جانتا ہوں وہ کبھی نازیہ کے ساتھ غلط حرکت تو کیا، بات بھی نہیں کریں گے۔ وہ تیزی سے صفائی دینے لگے۔ تبھی رئیس نے گہری سانس بھری۔ جانتا ہوں وہ مجھ سے یہاں ملنے آتے رہتے ہیں بھائی صاحب، نازیہ کو بھی گھر بلاتے ہیں، لیکن یہ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ میں اسی وجہ سے پریشان ہوں، میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ وہ پھر دوبارہ اسی بات پر آ گئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔
एहसान ने गहरी सांस भरी। नाजिया बेटा, जाकर अपना बैग तैयार करो, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे अब्बू को समझा कर आता हूँ। वो नाजिया को वहाँ से भेजना चाहते थे। देखो रईस, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं 10 साल से इंडिया से दूर हूँ। सिर्फ कुछ दिन के या महीने भर के लिए आता हूँ। उसमें भी तुम्हारे घर का रोज़ चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी इकलौती भतीजी और भाई बहुत प्यारा है। तुम्हें ये फिक्र है ना कि तुम्हारे बाद नाजिया का क्या होगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। इसका निकाह अपने बेटे से कर दूंगा। वो मेरे घर में हिफाजत में रहेगी। लेकिन अभी इस बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वरना नाजिया परेशान हो जाएगी, और वो अभी बहुत छोटी भी है। तुम्हारी बीमारी ने उसे समझदार कर दिया है, बस उसे अभी तुम्हारी बीमारी का नहीं मालूम। इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ, अपनी बेटियों की तरह रखूँगा। मैं हमेशा कहता था रईस, मुझे बेटी की कमी महसूस होती है और मुझे तुमसे तुम्हारी बेटी चाहिए। अब वो हुक्म वाले अंदाज में कह रहे थे। रईस मुस्कुरा दिए और उनके हाथ थाम लिए। उनकी आंखें नम हो रही थीं। वो जानते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनके भाई अपने वादे से नहीं मुकरेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं यही सोच रहा था, मेरे बाद नाजिया कैसे रहेगी। उसका पूरा सहारा तो मैं ही था। वो अपने छोटे भाई को गले से लगा गए। हम घर चलते हैं, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। अपनी बेटी का हाथ अपने हाथों से पीले करना, उसे तुम्हारी अभी बहुत ज़रूरत है। वो नरमी से कहकर नाजिया को देखने लगे। रईस ने सुकून से आंख बंद कर ली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मी जान, अब्बू का फ़ोन आया है। कह रहे हैं कि अपने चाचा जान और नाजिया के लिए कमरा तैयार करो। फैज़ान ने लाउंज में आते हुए अपनी माँ से कहा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। अपने भाई का दर्द उठ गया उनके दिल में। वो गुस्से से पूछने लगी, अम्मी क्या हो गया है आपको? वो अब्बू के सगे भाई हैं, और आप खुद सोचें, अगर मैं अपने भाई को इस हाल में, इस बीमारी में अकेला छोड़ दूं तो आपको कैसा महसूस होगा? वो कितने वक्त से अपनी बीमारी अकेले झेल रहे हैं। पहले सलमा चाची उनका सहारा थी, अब वो भी नहीं है। आने देना उनको यहाँ, हम सब मिलकर उन्हें मोहब्बत देंगे, वो ठीक होने लगेंगे। फैज़ान ने नरमी से अपनी माँ को समझाया। वो अपने अब्बू की ही तरह समझदार था। अम्मी जान ठीक कह रहे हैं भाई, कुछ दिनों के मेहमान हैं वैसे भी चाचा जी, दानिश ने मुस्कुरा कर कहा। फैज़ान ने उसे घूरा। तमीज़ से बात करो, सगे चाचा हैं वो हमारे। दानिश को अपनी बात पर थोड़ा बुरा लगा था। इतने में गाड़ी का हॉर्न बजा। आप जल्दी से कमरे को तैयार करवाएं अम्मी, फैज़ान ने परेशानी से कहा। शबाना बेगम ने नौकरानी को आवाज़ लगाई और वो कमरा तैयार करने के लिए भाग गई। नाजिया और एहसान उन्हें थामे हुए अंदर चले आ रहे थे। नाजिया ने ताई को सलाम किया और अपने तीनों कज़िन्स को भी सलाम किया। उन्होंने उसे लाउंज में ही बिठा दिया। शबाना बेगम, डिनर का इंतज़ाम करो, एहसान ने तेज़ी से कहा, तो वो सर हिलाकर जलती कुर्ती वहाँ से चली गई। फैज़ान अपने चाचा से उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। कैसी चल रही है तुम्हारी वकालत फैज़ान? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। बहुत अच्छी चाचा जी, मुझे लगता है सारी ज़िंदगी चुप रहकर गुजारी है, ये उसी का बदला है। वो हंस पड़े। वो वैसे शांत स्वभाव का था और अब उसे इतना बोलना पड़ता था कि वो खुद थक जाता था। सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी नाजिया ने अपने अब्बू का चेहरा देखा, जहां साफ तौर पर बहुत ज़्यादा थकान महसूस की जा सकती थी। अब्बू को डिनर कमरे में दे दीजिएगा। ताया जान, मैं अब्बू को कमरे में ले जाती हूँ, ये इतनी देर बैठ नहीं सकते, वो नरमी से कहते हुए परेशान नज़रों से अपने बाप को देखने लगी। फैज़ान ने उन्हें सहारा दिया और कमरे में छोड़ाया। डिनर दोनों ने कमरे में ही किया था। एहसान अपने भाई के साथ डिनर करते हुए उनके कमरे में ही आ गए थे। दोनों भाई साथ बैठकर बातें करते हुए डिनर कर रहे थे। नाजिया खामोश बैठी थी। अगली सुबह वो कॉलेज जा रही थी जब सैफ ने कहा कि वो उसे छोड़ देगा। उसने ताया जान से इजाज़त ली तो उन्होंने फैज़ान से कहा कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर दे। नाजिया को इस बात पर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाप के सामने उसने कुछ नहीं कहा। फैज़ान उसे कॉलेज छोड़ाया था। वो कुछ परेशान लग रही थी। शायद उसे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा था। अपने घर की बात अलग होती है,
وہ وہاں زیادہ سہج محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ جب وہ واپس کالج سے لوٹی تو گھر والے سارے غائب تھے۔ اس نے تائی جان کو دیکھا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ تائی جان، ابو کہاں ہیں؟ وہ پہلے اپنے ابو کے کمرے میں گئی تھی۔ وہاں انہیں نہ دیکھ کر گھبرا کر ان کے پاس آئی۔ گھر میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ احسان انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے بہت روکھے انداز میں یہ بات کہی۔ نازیہ فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ تائی جان، کون سا اسپتال؟ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ خود فون کر کے پوچھ لو۔ انہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ کندھے اچکا کر بولی۔ نازیہ تیزی سے فون کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ تایا جان کو فون کر کے اسپتال کا پتہ کیا، کیب بلائی اور اس میں بیٹھ کر نکل پڑی۔ ڈرائیور اس وقت نہیں تھا، ورنہ وہ اسی کے ساتھ چلی جاتی۔ راستے میں نہ جانے کون کون سی دعائیں پڑھتے ہوئے وہ اسپتال پہنچی۔ تایا جان کو سامنے دیکھ کر وہ ان کی طرف لپکی۔ تایا جان، ابو؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ فیضان، سیف اور ریحان وہیں موجود تھے۔ سب کے چہروں پر گہری فکر تھی۔ نازیہ رو رہی تھی اور تایا جان نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ وہ انہیں بچا نہ سکے۔ نازیہ تڑپ کر رو پڑی۔ وہ بار بار تایا جان سے کہتی کہ یہ جھوٹ ہے، انہیں کسی دوسرے اسپتال لے چلیں۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے ابو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ جنازہ نازیہ نے اسی گھر سے اٹھانے کو کہا جہاں وہ اور اس کے ابو رہتے تھے۔ احسان صاحب نے بنا کسی طرح کی برائی مانے نازیہ کی یہ بات مان لی تھی۔ سب لوگ آتے اور نازیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ سب کیا دیکھنا پڑ گیا۔ وہ ابھی بھی کالج کی سفید یونیفارم پہنے ہوئے تھی۔ فیضان نے اسے دیکھا۔ وہ کچھ گھنٹوں میں بے انتہا کمزور اور اکیلی سی لگ رہی تھی۔ تایا جان نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے کچھ دن چاہیے۔ ابو اور میرے ساتھ اس گھر میں میری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ محض 16 سال کی ہے۔ اس نادان سی بچی کو باپ کی بیماری نے بہت کم عمر میں بڑا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر فیضان تمہارا نکاح ہو رہا ہے نازیہ سے، احسان صاحب نے حکم دیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ فیضان تیزی سے صوفے سے اٹھا اور یقین نہ کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ نازیہ کو ایک مضبوط رشتے کی ضرورت ہے اور میں اپنی بچی کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ تو تایا اور بھتیجی کے رشتے پر بھی سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ تم سے نکاح ہو جائے گا تو کوئی سوال جواب نہیں کرے گا۔ میں تم سے زیادہ اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ سختی سے کہہ رہے تھے۔ فیضان نے نام سر ہلایا۔ وہیں شبانہ بیگم نے اپنے شوہر کو گھورا۔ نازیہ بھی چھوٹی ہے، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ فوراً بیچ میں دخل دینے لگی۔ شریعت کے حساب سے ہو سکتا ہے اور میں نازیہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے کہا تھا بیٹوں والا گھر ہے، اب تو مجھے ضرور کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہے۔ پھر احسان صاحب نے نازیہ سے کہا، میں نے تمہارے ابو سے بات کی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نازیہ سے کہہ دینا کہ اس کے ابو فیضان کے ساتھ اس رشتے کے لیے راضی تھے۔ کیا تمہیں میری بات پر یقین ہے؟ انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تو نازیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب اس کے ابو کی ہی یہی خواہش تھی تو وہ انکار بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ فیضان، اگر تم چاہتے ہو کہ میں گھر چھوڑ کر نہ جاؤں تو تمہیں نکاح کرنا ہوگا اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی، کیونکہ صرف نکاح کر کے چھوڑ دیا تو تم اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کرو گے۔ احسان صاحب ہر بات سے پہلے ہی واقف تھے، اس لیے وہ پہلے ہی صاف صاف بول رہے تھے۔ نازیہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے تو بس یہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اس کے ابو کی آخری خواہش ہے۔ فیضان نے بہت غصے سے نکاح قبول کیا تھا۔ انہوں نے جیسے اپنی بیٹی جیسی نازیہ کو اپنا کر اپنے ہی بیٹے کو پرایا کر دیا ہو۔ نکاح کے بعد جب احسان صاحب جانے لگے تو انہوں نے کہا، یہیں بیٹھ جاؤ اور نازیہ کے ساتھ رہنا، ہم سب صبح آئیں گے۔ وہ سب کو اشارہ کرنے لگے۔ محلے کے کچھ لوگوں کو بھی اس لیے بلایا گیا تھا
ताकि कोई बातें न बनाए कि नाजिया के साथ घर में कोई गैर मर्द रह रहा है। सबके जाने के बाद फैज़ान गुस्से से उसकी तरफ आया। तुम्हारे सिर्फ इस घर में रहने वाली बात की वजह से हमारा ये निकाह हुआ है, वो गुस्से से बोला। ये अब्बू की ख्वाहिश थी, वो धीमी आवाज़ में बोली। तो क्या मैं ही मिला था बलि का बकरा बनने के लिए? वो गुस्से से दहाड़ रहा था। नाजिया को अभी अपने अब्बू की मौत का गम मनाना था। वो चुपचाप वहाँ से हट गई। कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। फैज़ान पहले अपने होंठ भींचता रहा, फिर उठकर कमरे की तरफ आया। नाजिया, तुमने ना तो कपड़े बदले हैं और ना ही कुछ खाया है। मैं खाना लगा रहा हूँ, जल्दी से नहाकर बाहर आओ, और मैं इस बारे में कोई बहस नहीं चाहता। वो गुस्से से बोला। वो उससे 10 साल बड़ा था और उसके आगे नाजिया किसी छोटी बच्ची जैसी लगती थी। वो सर हिलाकर नहाने के बाद बाहर आई और प्लेट में चम्मच घुमाने लगी। कुछ और खाना है? उसने हालात की मजबूरी को समझते हुए थोड़ा नरमी से पूछा। नहीं, बस अब्बू की याद आ रही है। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। फैज़ान अफसोस से उसे देखता रहा, फिर उसके कंधे थाम कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। अगर वो सिर्फ एक कज़न के तौर पर सामने बैठकर रो रही होती तो वो उसे कभी गले न लगाता, लेकिन अब वो उसके निकाह में थी और उसे शांत कराने के लिए वो इतना तो कर ही सकता था। वो बहुत देर तक सिसक कर रोती रही और फैज़ान उसके नाजुक वजूद को दिलासा देता रहा। न जाने वो कब सोई, फैज़ान को पता ही न चला, क्योंकि वो लगातार सिसकियां भर रही थी। जब उसने नाजिया का चेहरा सामने किया तो उसके मासूम नक्श ने फैज़ान के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वो नरमी से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करने लगा। मैं तुम्हारे मामले में नरमी बरतना चाहूँ भी तो आखिर कैसे बरतूं? अब्बू ने मुझ पर तुम्हें अहमियत जो दे दी है। वो उसे देखते हुए मन ही मन सोच रहा था। उसने नाजिया को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में चला गया। कपड़े बदले बिना ही वो वैसे ही लेट गया और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। सुबह होते ही शबाना बेगम सबसे पहले वहां पहुंच गईं। डोरबेल की आवाज़ सुनकर नाजिया ने दुपट्टा उड़ा और बाहर आकर दरवाज़ा खोला। उसका बिखरा हुआ हुलिया देखकर शबाना बेगम ने गुस्से से उसे एक धक्का दिया। तुम रात मेरे बेटे के करीब रही थी? वो गुस्से से पूछने लगी। नाजिया ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। वो तो दूसरे कमरे में सो रहे थे। उसने सीधी बात बताई। वो उनकी बात का मतलब समझ न पाई, इसलिए शबाना ने गहरी सांस ली। अवरोध होकर मेरे बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश मत करना, उससे दूर रहना, और अगर वो खुद तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे याद दिलाना कि यह शादी तुम्हारे अब्बू की सिर्फ एक जिद थी। वो गुस्से से कह रही थी और उनकी आंखों में साफ नफरत झलक रही थी। नाजिया ने चुपचाप सर हिला दिया। अपनी तैयारी कर लेना। तीजे के बाद एहसान साहब ने कहा है कि तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो। फैज़ान के कमरे में रहते हुए भी उससे 100 गज की दूरी पर रहना। वो पहले ही उसे हदें समझा रही थी और नाजिया बस सर हिला रही थी। हटो अब रास्ते से, मुझे और भी कई काम देखने हैं। ये कहते हुए वो अंदर आ गईं। जब उन्होंने दूसरे कमरे में झांक कर देखा तो वाकई फैज़ान दूसरे कमरे में था। वो कुछ हद तक संतुष्ट हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि एहसान फैसला कर चुके थे कि वो दोनों साथ रहेंगे। वो नाजिया को तो डांट डपट कर समझा सकती थी, लेकिन अपने बेटे को कैसे समझाती? नाजिया कम उम्र भी थी और खूबसूरत भी, इसलिए उनके लिए दोनों को एक छत के नीचे रहने से रोकना आसान नहीं था। रात तक ताज़ियत करने वाले लोग जा चुके थे। अब वहाँ सिर्फ एहसान साहब का परिवार और नाजिया बैठे थे। नाजिया बेटा, घर चलो, यहाँ पर भी आती रहना, एहसान साहब ने प्यार से कहा। पहले आप प्रॉमिस करें कि मुझे मेरे घर आने से कभी मना नहीं करेंगे। उसने अपने हाथ फैलाते हुए मुस्कुराकर पूछा। एहसान साहब मुस्कुरा दिए। नहीं बच्चे, भला क्यों मना करूँगा? यहाँ तुम्हारे अब्बू की खुशबू बसी है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? उन्होंने प्यार से उसका सर सहलाया। उनकी इस मोहब्बत से उसे अपने माँ बाप जैसी ममता दिखाई देती थी, इसलिए वो कभी उनकी बात नहीं टालती थी। आप बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे प्यारे हैं, वो नरमी से बोली।
फैज़ान ने उसे गुस्से से घूरा। वो उसके अब्बू के साथ ज़रूरत से ज़्यादा घुली मिली थी और ये उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। हालांकि फैज़ान भी अपने बाप की बात कभी नहीं टालता था और अगर नाज़िया उनकी शिकायत उनसे लगा भी देती तो एहसान साहब सबके सामने उसे जलील कर देते। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और नाज़िया ने फैज़ान की तरफ देखा तक नहीं। वो ताया जान के साथ ही उनके घर आ गई और फैज़ान के कमरे में उसे आराम करने के लिए भेज दिया गया, जबकि फैज़ान न जाने कहाँ चला गया था। उसे कोई खबर नहीं थी। वो अकेले बैठकर अपने अब्बू की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। सामने खाने की प्लेट वैसी की वैसी रखी थी, जैसे किसी ने हाथ तक न लगाया था। वो कब सोई उसे कुछ खबर नहीं। जब फैज़ान कमरे में आया और उसे सोते हुए देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब से नाज़िया को उसी के कमरे में रहना था। क्या मुसीबत है यार, वो झुंझलाते हुए बोला और खाने की प्लेट की तरफ देखने लगा। खाना भी नहीं खाया इसने। अब वो थोड़ा नरम पड़ा। उसने नाज़िया के हाथ से तस्वीर लेकर साइड पर रखी और उसका माथा छुआ, जो बिल्कुल ठंडा था। उसने राहत की सांस ली, फिर उठकर उस पर चादर डाली और ख़ुद बाथरूम में चला गया। नहाकर वापस आने के बाद उसने फिर से नाज़िया के माथे पर उंगली रखकर देखा। इसके साथ इस तरह सोना सेफ नहीं है। मुझे अपने सोने का कोई दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि नाज़िया बुरी तरह कांप रही है और नींद में ही नाम में सिर हिलाते हुए बुदबुदा रही है। अब्बू मत जाएं। फैज़ान फौरन उसके करीब आया, उसका सर थपथपाते हुए उसे ये एहसास कराने लगा कि वो अकेली नहीं है। नाज़िया, मैं यहाँ हूँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। उसकी आवाज़ सुनते ही नाज़िया ने डरकर उसकी कमीज़ की बाँह को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया। फैज़ान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसने ना तो उसे झटका और ना ही दूर किया। वो बेचारी बुरी तरह कांप रही थी और फैज़ान चाहकर भी उसे इस हाल में झटक नहीं सकता था। वो इस वक्त जिस मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रही थी, उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन था। उसका अब दुनिया में अपना कोई सगा नहीं बचा था। फैज़ान ने नरमी से उसका गाल सहलाया। कुछ ही देर में वो शांत हो गई, लेकिन इस सब के बीच फैज़ान का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अब उसे नाज़िया के करीब आने के बाद खुद को उससे दूर रखने का विचार गलत लगने लगा। वो उसके हाथ थामे हुए उसे देखते देखते वहीं उसके करीब ही सो गया, ये भूलकर कि कुछ ही देर पहले वो खुद को समझा रहा था कि उसे नाज़िया से दूरी बनाकर रखनी है। सुबह जब नाज़िया आंखें मलते हुए उठी तो फैज़ान पहले ही उठ चुका था और अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अगर अभी और सोना है तो सो जाओ, वो जूते के फीते बांधते हुए बोला। तो नाज़िया चौंक कर उसकी आवाज़ की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, अच्छी नींद सोई हूँ। और वो अच्छी तरह जानता था कि वो कितनी सुकून से सोई थी। ठीक है, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता बाहर करना हो तो डाइनिंग टेबल पर आ जाना, और अगर कमरे में मंगवाना हो तो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। वो संजीदगी से बोला। क्या बाहर ताया जान होंगे? वो थोड़ा सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगी। उनके बिना वो नाश्ता कैसे करती? फैज़ान समझ गया कि एहसान साहब की मौजूदगी उसे सुकून देती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। 15 मिनट बाद वो तरोताज़ा होकर नाश्ते की मेज़ पर पहुँच गई। उसने एहसान साहब को सलाम किया और फिर शबाना बेगम को भी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नाज़िया चुपचाप अपने नाश्ते में लगी रही। फैज़ान ने अपनी माँ का ये रूखा अंदाज देखा, लेकिन वो चुप ही रहा। कॉलेज कब से जाना है? पढ़ाई का शौक़ ज़िंदगी भर का है, इसे ऐसे बीच में कम नहीं किया जा सकता। अभी नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, ऐसे छुट्टियां करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एहसान साहब ने उसे प्यार से समझाया। अगर वो किसी काम में बिजी रहेगी तो कम से कम अपनों की कमी और गम को कम महसूस करेगी। जी ताया जान, जैसा आप कहें, वो मुस्कुरा कर बोली। फैज़ान अपना सर झटक कर रह गया, क्योंकि वो जानता था कि नाज़िया ताया जान की हर बात मानती है। आज आराम कर लो, कल से कॉलेज चली जाना। रोज़ फैज़ान ही तुम्हें कॉलेज छोड़ने और लाने जाएगा। एहसान साहब ने साफ तौर पर फैज़ान को हुक्म दिया, जिस पर फैज़ान ने एक गहरी सांस ली। नाश्ते के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई।
دانش اور ریحان نے بس औपचारिकता کے طور پر ٹھیک سے بات کی تھی، وہ زیادہ گھل مل نہیں رہے تھے۔ شاید گھر میں کوئی بھی اتنی جلدی اس رشتے کو دل سے سویکار نہیں کر پا رہا تھا۔ نازیہ نے ایک لمبی سانس لی، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی، اور گھر کے چاروں مردوں کے جانے کے بعد تائی جان نے ایک بار بھی آ کر اس سے پوچھا تک نہیں تھا۔ گھر کی نوکرانی چپ چاپ کمرے میں کھانا دے کر چلی جاتی تھی۔ رات کو فیضان دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد کمرے میں آیا۔ نازیہ بالکنی میں خاموش کھڑی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا کہ فیضان اسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تم یہاں ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ امی بتا رہی تھی کہ تم سارا دن کمرے میں ہی بند رہی ہو، آخر کیوں؟ اس نے اپنی آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تو میں باہر جا کر کیا کرتی؟ اس نے الٹے سوال کرتے ہوئے جھجک کر پوچھا۔ اچھا، باہر جایا کرو، گھر میں کوئی کام بھی کر لیا کرو، تھوڑا ہاتھ بٹا لیا کرو، اس سے تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی اپنی ایک سکون بھری زندگی تھی، اور اب گھر آتے ہی اسے اپنی ماں سے بیوی کی شکایتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ وہ صحیح معنوں میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ چھوٹی سی بیوی کی شکایتیں اور اوپر سے گھر میں ہونے والی ڈانٹ ڈپٹ، وہ ان سب چیزوں سے ہمیشہ کتراتا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا تو نازیہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے لیے ڈنر لگوا دوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر نازیہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا، تایا جان نے کہا تھا کہ جب بھوک لگے تو کھا لینا، ورنہ تمہارا انتظار کروں۔ مجھے کچھ دیر پہلے بھوک لگی تھی، پر میں نے سوچا کہ جب آپ آ جائیں گے تب ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی۔ وہ پوری بات وستار سے بتا رہی تھی، اور فیضان اسے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ تو بس سونے کے لیے لیٹنے ہی والا تھا، تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے حیران ہوا۔ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، وہ دوبارہ بولی۔ اچھی بیوی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بھوک لگے تو کھا لیا کرو۔ چلو اب چپ چاپ جا کر کھانا کھاؤ، وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ نازیہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ فیضان نے ایک گہری سانس لی۔ اسے اچھا تو لگا تھا کہ گھر میں کوئی ایسا تھا جس نے اس کے انتظار میں بھوکے رہنے کی پرواہ کی، لیکن پھر اس کے اتنی دیر تک بھوکے رہنے پر اسے غصہ بھی آیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانے کے بجائے رونے نہ لگے۔ جب فیضان کچن میں پہنچا تو وہ فریج میں کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا۔ یہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اداس ہو کر بتانے لگی۔ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ نوکر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ صبح کوئی بھی باسی کھانا نہیں کھاتا، اسی وجہ سے کھانا برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تم اپنے لیے کچھ بنا لو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھیں، لیکن نازیہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، وہ کیا؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ سادے سے کاٹن کے سوٹ میں تھی، لیکن اس وقت بے انتہا معصوم لگ رہی تھی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، گھر کا کوئی کام نہیں آتا، وہ رونی سی صورت بنا کر بولی۔ فیضان کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، جبکہ نازیہ نے اپنی گردن جھکا رکھی تھی۔ پھر وہ خود اٹھا اور پاستا کا سامان نکالنے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ پاستا بنا رہا ہوں، کیا تمہیں پسند ہے؟ وہ یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا تھا کہ کیا نازیہ پاستا کھاتی بھی ہے یا نہیں۔ کیا آپ کو بنانا آتا ہے؟ وہ بہت زیادہ حیران تھی۔ ہاں آتا ہے، انڈیا سے باہر رہ کر پڑھائی کی ہے۔ جب انسان اکیلا رہتا ہے تو اسے سب کچھ اپنے آپ ہی آ جاتا ہے، وہ ہاتھ چلاتے ہوئے بتانے لگا۔ اب دونوں کے بیچ پہلے جیسا اجنبی پن کا وہ رشتہ نہیں رہا تھا۔ آپ تو بڑے قابل انسان ہیں، وہ حیران ہوتے ہوئے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ فیضان نے اپنی بونہیں اچکا کر اسے دیکھا۔ قابل لوگ ہوتے ہیں، میں کیوں ہونے لگا؟ وہ نام سر ہلانے لگا۔ نازیہ پاستا بننے کا انتظار کرتے ہوئے بار بار بے صبری سے ڈھکن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اوون میں بنانا چاہیے تھا، لیکن وہ خراب ہو گیا ہے، اس نے اس کی بے صبری کو دیکھ کر کہا۔ جب نازیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والی نادانی کی تو فیضان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے گرما گرم پاستا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ نازیہ جلدی جلدی کھانے کے چکر میں اپنا منہ جلا بیٹھی
तो फैज़ान हंसते हुए नामे से हिलाने लगा। फिर वो वहाँ से चला गया और नाजिया खाने के बाद बर्तन धोकर कमरे में आ गई। जब वो वापस आई तो फैज़ान सो चुका था। वो परेशान हुई कि अब वो कहाँ पर सोए। आखिरकार कोने में लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। फैज़ान गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। नाजिया अपने होंठ भींचते हुए उसे देखने लगी। अगली सुबह शबाना बेगम ने फैज़ान की एक शर्ट नौकरानी को इस्त्री करने के लिए दी, लेकिन नौकरानी घबराकर उनके पास भागी हुई आई। बेगम साहिबा, गलती से शर्ट जल गई है, साहब बहुत गुस्सा होंगे। वो अभी ये बात कह ही रही थी कि फैज़ान गुस्से में तेजी से नीचे उतरा। अम्मी, मेरी शर्ट किसने जलाई है? ऑफिस के लिए मुझे पहले ही लेट हो गया है, ऊपर से ये नई मुसीबत। फैज़ान के इस तरह दहाड़ने पर शबाना बेगम के होंठों पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट आई। बेटा, मैंने नाजिया को कहा था, शायद उसी से जल गई होगी। वो जाहिर तौर पर बहुत परेशानी का नाटक करते हुए बोली। ये सुनते ही फैज़ान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। किस बेवकूफ़ को बाबा ने मेरे गले बांध दिया है। वो अपनी 16 साल की बीवी से सख्त नाराज़ था। जब से उसके दोस्तों को ये पता चला था कि उसका निकाह इतनी कम उम्र की लड़की से हुआ है, तब से वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बीवी की जगह बच्ची पालने के अजीब अजीब मशवरे देते। ये सब सोचते हुए वो गुस्से से आग बबूला होता हुआ कमरे में आया, लेकिन वहाँ नाजिया गायब थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पीछे हुए उसके छोटे से वजूद पर पड़ी तो शदीद गुस्से के बावजूद फैज़ान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक झटके से उसे खींचकर बाहर निकाला तो नाजिया डर के मारे चीखने लगी। प्लीज़ मुझे मारना मत, वो घबरा कर बोली। वो सुबह कॉलेज के लिए तैयार होकर जाने ही वाली थी और जब उसने सुन लिया था कि ताईजान ने गलत बयानी की है तो उसे समझ आ गया कि अब फैज़ान से उसकी खैर नहीं है, इसलिए वो डर के मारे छुप गई थी। इससे पहले कब मारा है तुम्हें बेगम साहिबा? वो झुककर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो नाजिया अपनी सांस रोककर उसे देखने लगी। मैंने इस्त्री नहीं की, मुझे नहीं आती, उसने पूरी सच्चाई से बताया। ये सुनकर फैज़ान एक गहरी सांस भरकर रह गया। मेरी अम्मी को गलत मत समझना नाजिया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, नाजिया खुद ही बोल पड़ी। मैं जानती हूँ आपकी अम्मी ने सोचा था कि आपके लिए कोई बहुत प्यारी और पढ़ी लिखी लड़की लाएंगी और मैं आप पर एक बोझ बनकर आ गई हूँ। आप लोगों को मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, पर मैं उल्टा आप सबके गले अटक गई हूँ। वो अपना सर झुकाए हुए बेहद उदास आवाज में बोल रही थी। फैज़ान ने उसके मुंह से पहली बार ऐसी बातें सुनी थी। वो नरमी से उसके करीब आया और उसके बिल्कुल पास से गुजरा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही कभी सोचना चाहता हूँ। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। फैज़ान के परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू उसके सांसों पर छा रही थी। घबराहट में उसने अपना हाथ फैज़ान के सीने पर रख दिया। फैज़ान उसके हाथों की नरमी महसूस करते हुए अपनी सांसें रोककर उसे देखने लगा। कॉलेज में लड़कियां मुझसे तरह तरह के सवाल करती हैं। नाजिया ने अपनी नज़रें झुका रखी थी और शर्म से उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था, लेकिन फैज़ान की इस बात से उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी हिम्मत मिली थी। कैसा सवाल? वो उसके चेहरे पर बिखरी हुई शर्म की लाली को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने तेजी से धड़कते दिल को कैसे काबू करे। वो बस यही सब, वो हकलाने लगी। तुमसे क्या पूछती हैं? वो जानना चाहता था। नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो वैसे ही मजाक करती हैं। वो हड़बड़ाकर उससे दूर हो गई। फैज़ान अभी भी नासमझी से उसे ही देख रहा था। अब उसने खुद अपने कपड़े निकाले और उन्हें इस्त्री करने लगा। क्या मैं कर दूं? नाजिया कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने उसके सर पर आकर पूछने लगी। नहीं, मैं खुद कर लूँगा। अगर तुमने की तो सच में आज ऑफिस पहुंचने में लेट होने पर मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन उसकी इस बात से नाजिया का दिल थोड़ा सा बुरा मान गया। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उधर ताईजान के दिल में जैसे फफोले फूट रहे थे कि वो आखिर कैसे उनके बेटे के साथ जाती है। न जाने अब उनका रिश्ता किस तरह का बन चुका था और कमरे की चार दीवारी के अंदर आखिर क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए वो बेताब थी। जब नाजिया कॉलेज से लौटने के बाद आराम से नहाकर लेटी हुई थी,
तभी शबाना बेगम उसके कमरे में आ गई। सोचा तुम्हारे पास बैठकर थोड़ी देर बात कर लूं। तुम तो आजकल ताई जान को पूछती ही नहीं हो, वो बात बनाते हुए बोली। तो नाजिया शर्मिंदा हो गई। आप मुझे बुला लेती ताई जान, वो शर्मिंदगी से बोली। हाँ बुला लेती, पर मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुमने मेरे बेटे के कमरे को कैसे संभाल रखा है। वो कमरे के चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोली। क्या फैजान यहीं सोता है? उन्होंने थोड़ा कुरेदते हुए पूछा। तो नाजिया ने हाँ में सर हिला दिया। तुम जरूर उसके कंधे पर सर रखकर सोती होगी ना, वो तंजिया हंसकर बोली, जिससे नाजिया का चेहरा मारे शर्म के बिल्कुल लाल हो गया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और बिल्कुल साफ साफ बताना नाजिया। अब की बार उनका लहजा बहुत गंभीर था। क्या फैजान कभी तुम्हारे करीब आया है? ये सुनते ही नाजिया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। आज सुबह ही तो वो उसके इतने करीब था कि उसकी खुशबू तक महसूस हो रही थी, और आज भी वो उस एहसास को अपने आसपास महसूस कर रही थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ताई जान को क्या जवाब दे। मैंने सोचा तुम्हें समझा दूं, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी शादी बहुत जल्दी में कर दी गई है। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो जाहिर है अभी तुम्हारी शादी ना होती, लेकिन थोड़ा एहतियात बरतना, अभी तुम बच्ची हो, वो उसे समझा रही थी। और नाजिया बस नासमझी से उनकी बातें सुने जा रही थी। उसने उस वक्त तो कोई सवाल न किया, पर मन ही मन सोच लिया कि जिस दिन फैजान अच्छे मूड में हुआ वो ज़रूर उससे इस बारे में बात करेगी। आजकल फैजान उसे खुद पढ़ा रहा था। वो इतना सख्त उस्ताद साबित हो रहा था कि नाजिया पढ़ते पढ़ते तंग आ जाती। मुझे आपसे कुछ पूछना है, नाजिया ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि यही एक सवाल वो पहले ही बहुत से लोगों से सुन चुकी थी और अब ये उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। हाँ पूछो, एक क्या 100 बार पूछो। फैजान जो उस वक्त उसकी किताबें पढ़कर उसके लिए नए टॉपिक ढूंढ रहा था, सब कुछ छोड़कर उसे देखने लगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे उसे इतनी शर्म आ रही थी? कैसे सवाल करती हैं सब, मुझे बिल्कुल ठीक ठीक बताओ। उसने नाजिया का हाथ अपने हाथ में थाम कर प्यार से पूछा। यही सब कि आप मेरे कितने करीब आते हैं, आप मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्या आपने मुझे पहले से पसंद किया था या मैंने आपको किया था? ताई जान उस दिन कमरे में आई थी और पूछ रही थी कि हम दोनों किस तरफ सोते हैं, और क्या मैं... ये बोलते बोलते नाजिया रुक गई और उसने अपने होठों को दांतों से दबा लिया। फैजान समझ चुका था कि आखिर ये सब लोग क्या जानना चाहते हैं। आगे बोलो, उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा उभर आया था। आखिर ये लोग उसकी पर्सनल लाइफ के पीछे क्यों पड़े थे? क्या मैं आपके कंधे पर सर रखकर सोती हूँ? मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं सोते वक्त कैसे लेटती हूँ, वो नज़रें झुकाकर बोली। यहाँ आओ। फैजान ने नरमी से उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। किसी की भी किसी भी बात से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी से ऐसे ऊट पटांग और घटिया किस्म के सवालों के जवाब देने की। बस इतना कह दिया करो कि ये बहुत निजी मामला है और सबको अपनी हद में रहना चाहिए। लोगों को उनकी औकात और हद बताना सीखो नाजिया, वो नरमी से उसके गाल सहलाते हुए समझा रहा था। क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? वह हैरानी से पूछने लगी। क्या उन्होंने एहसास किया कि तुम्हें इन बातों से बुरा लगेगा? फिर तुम क्यों ये सोचकर परेशान होती हो कि उन्हें बुरा लगेगा? वो बहुत सुकून से उसे समझा रहा था। आपको बहुत गुस्सा आता होगा ना मुझ पर? वो थोड़ा सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगी। इस बात पर? वह हैरान होते हुए पूछने लगा। यही कि आपके गले इतनी नासमझ बीवी पड़ गई है। उसने अफसोस से अपना सर हिला दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी इतनी मासूम बीवी है, और ये पड़ गई है क्या होता है, तो मेरी बीवी हो कोई चीज़ नहीं। वो प्यार से अपने अंगूठे से उसकी थोड़ी सहला रहा था, और नाजिया सुकून से अपनी आंखें बंद किए वहीं बैठी रही। तुम्हारे कॉलेज में लड़के भी हैं? उसने अचानक पूछा। तो नाजिया ने हाँ में सिर हिलाया। उनमें से कोई अच्छा लगा? वो न जाने क्या पूछना चाहता था। हाँ, सब अच्छे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। कहते हैं कि शादीशुदा होने का मतलब भी मुझे नहीं मालूम। वो गुस्से से शिकायत करने लगी। तो फैजान हंसने लगा। वो लोग सही कहते हैं। किसी दिन मुझे तुम्हारे कॉलेज जाकर अपना परिचय देना ही पड़ेगा।
ताकि सबको यकीन आ जाए और लड़के तुमसे दूरी बनाए रखें। वो थोड़े जलन भरे लहजे में बोला। वो पहले से ही दूरी बनाकर रखते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो इतना करीब आते हैं, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं ना, वो मासूमियत से बोली। फैज़ान अपनी बेबसी पर हंस पड़ा। काश मैं इसे बता पाता कि शौहर और क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन इसकी उम्र का ख्याल करना पड़ता है। उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो हमारा रिश्ता कायम हो गया है। नाजिया ने नासमझी से कहा तो फैज़ान को लगा कि अब उसे सच्चाई का थोड़ा ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा ताकि उसके ऐसे मासूम सवाल बंद हो जाएं। वो किताबें साइड पर रखते हुए उसे पूरी तरह अपने करीब ले गया। नाजिया ने हैरानी से अपने हाथ उसकी पीठ पर टिका दिए तो फैज़ान मुस्कुराया। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? उसने उसके कान में पूछा। नहीं तो, बुरा तो नहीं लग रहा, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, वो अभी भी नासमझी से कह रही थी, जबकि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। फैज़ान ने उसका चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों में झांकने लगा। नाजिया नज़रें चुराने लगी तो वो मुस्कुराया। अब्बू कह रहे थे कि हमें तुम्हारी छुट्टियों में कहीं हनीमून पर जाना चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। हाँ तो चलिए ना, मेरी दोस्त भी पूछ रही थी कि हनीमून के लिए कहाँ गए और हस्बैंड ने कौन सी ड्रेस दिलाई। वो बड़े उत्साह से बताने लगी तो फैज़ान के कान शर्म से लाल हो गए। तुम सबसे पहले उन लड़कियों से दोस्ती ख़त्म करो नाजिया, वो उसका गाल सहलाते हुए बोला। लेकिन शादी की बात सुनकर सारी सहेलियां ऐसे ही सवाल करती हैं, उसने उदासी से बताया। मैं कल तुम्हारे कॉलेज चलूँगा और ख़ुद उनसे बात करूँगा। उसने हाथ थामा। अगले दिन वो वाकई उसके कॉलेज पहुँचा। लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी से इतनी प्रभावित हुईं कि वो नाजिया के लिए ऐसे शौहर की दुआ करने लगी। फैज़ान ने दो टूक अंदाज में कहा, आप लोग आगे से नाजिया की निजी बातों पर कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही ऐसी कोई बात जिसमें मेरा जिक्र हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बीवी असहज महसूस करे। उसके जाते ही सहेलियां नाजिया की टांग खींचने लगी कि कितना प्यारा शौहर है और कितनी परवाह करता है। कॉलेज से लौटने के बाद नाजिया अपनी दोस्तों की समझाई हुई बातें सोचने लगी। फैज़ान का ख्याल रखना, उसे मोहब्बत देना, बिना कहे उसके काम कर देना। वो सब सोचते हुए उठी और शर्ट इस्त्री करने लगी। अभी तक वो 5-6 शर्ट जला चुकी थी कि फैज़ान कमरे में गया और जली हुई शर्ट देखकर हैरान रह गया। ये सब क्या है नाजिया? उसने पूछा। आप इतनी जल्दी आ गए? वो हड़बड़ा कर बोली। आपके लिए पानी लाती हूँ। वो तेज़ी से जाने लगी तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली। इस्त्री नहीं आती तो क्यों कर रही हो? और मैं पानी पीकर ही ऊपर आया हूँ, उसने कहा। मैं अपने काम करने के बारे में सोच रही थी, अभी सीख रही हूँ ना, इसलिए शर्ट जल गई। कपड़े भी धोने थे। खाना क्या खाएंगे आप? वो बहुत घबराई हुई थी। फैज़ान उसकी बातों पर हैरान रह गया। अम्मी ने कहा है ये सब करने को? नहीं तो, मेरी दोस्त कहती हैं कि आपका ख्याल रखूं, वरना आप मेरी बेवकूफ़ी से तंग आकर मुझे छोड़ देंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी और फिर आप मुझे घर से निकाल देंगे। वो रोते हुए अपनी चिंता बताने लगी। पागल हो तुम, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। मुझसे पूछ लिया करो, और मुझे ऐसी समझदार बीवी नहीं चाहिए। मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये शब्द नाजिया के लिए बहुत प्यारे थे। वो उसे देखती ही रह गई। दरवाजे पर खड़ी शबाना बेगम ने गुस्से में ये सब सुना। तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो, इसकी औकात ही क्या है? वो गुस्से से बोली। अम्मी, मैं कुछ दिन के लिए नाजिया को उसके अब्बू के घर ले जा रहा हूँ। जब तक आप नाजिया को बहू के तौर पर स्वीकार नहीं कर लेती, मैं वापस नहीं आऊँगा। मैंने सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है अब मुझे ही ठोस कदम उठाना होगा। ये कहते हुए नाजिया की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर ढेर सारी खुशी थी। उसे पता था कि फैज़ान जानता है कि नाजिया अपने घर को कितना मिस करती है। शबाना बेगम को लगा कि वो दोनों हाथ से निकल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी भांजी अनाया को तुर्की से बुलवाना चाहा ताकि उन दोनों को अलग कर सके। लेकिन अनाया ने अपनी खाला को साफ फ़ोन पर इनकार कर दिया कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। उधर फैज़ान नाजिया को लेकर वहाँ से निकल आया। नाजिया अपने कमरे में लेटकर सुकून महसूस कर रही थी। आप बहुत अच्छे हैं, मैं कब से यहाँ आने का सोच रही थी, वो खुशी से बोली। फैज़ान उसके पास आया।
اگر میں کہوں کہ مجھے ایک شوہر ہونے کا حق چاہیے تو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ اس کے لیے نازیہ سے دور رہنا ناممکن ہو رہا تھا اور پاس جانے سے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی معصومیت پر برا اثر نہ پڑے۔ نازیہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اس نے فیضان کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ احسان صاحب کو اس پر گرو ہوا اور بھائیوں نے بھی اسے چھوٹی بہن کی طرح اپنا لیا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ میں آپ کی ہوں اور آپ میرے ہیں۔ اس کی مسکراتی آواز فیضان کے کانوں سے ٹکرائی۔ واقعی میں تم میری ہو۔ کاش یہ بات مجھے پہلے دن معلوم ہوتی تو تمہیں اتنا کچھ سہنا نہ پڑتا۔ وہ اداس ہو کر بولا، کوئی بات نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، ورنہ آپ کو میری قدر کیسے ہوتی؟ وہ پوچھنے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ بھوک لگی ہے؟ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے ابھی تو تم نے اجازت دی تھی اور اب بھاگ رہی ہو؟ فیضان نے مذاق کیا۔ نازیہ پہلی بار ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سیف کی ہونے والی منگیتر ہبا نے بہت کچھ سمجھایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ احسان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اسے کسی سمجھدار لڑکی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانے کے بعد فیضان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نازیہ نے لیپ ٹاپ ہٹا کر خود کو اس کے پاس لٹا لیا۔ مجھ پر پیار آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ہبا سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے کچھ باتیں سمجھائی تھیں، نازیہ نے دبے شبدوں میں کہا۔ فیضان سمجھ گیا، میں لوگوں کے کہے انوسار نہیں بلکہ ہمارے آپسی تال میل کے حساب سے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ دنیا کیا چاہتی ہے۔ میں تو صرف آپ کو چاہتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر چہرہ موڑ گئی۔ فیضان مسکرا پڑا اور اس نے بنا دیر کیے نازیہ کو یہ بتا دیا کہ وہ خود بھی کیا چاہتا ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ فیضان نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور نازیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ نازیہ، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ سہج محسوس کر رہی تھی، اس نے شرارت سے فیضان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ ہے فیضان، اس نے نٹکھٹ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ہبا نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کی باتیں بہت دھیان سے سننی چاہیے، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی ہیں اور پھر چائے بھی پھیکی ملتی ہے۔ فیضان ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے نازیہ کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ تو کیا آج مجھے چائے پھیکی ملنے والی ہے؟ نازیہ نے شرارت سے اپنی نازک انگلیاں اس کے بالوں میں گھمائیں۔ وہ تو آپ کی حرکتوں پر نربھر کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے تنگ کریں گے تو چائے میں نمک بھی ہو سکتا ہے۔ فیضان نے مذاق میں اس کی ناک کو ہلکے سے دبایا۔ نمک والی چائے؟ یہ تو نیا تجربہ ہوگا، پر مجھے تو تمہاری نٹکھٹ باتیں ہی زیادہ میٹھی لگتی ہیں۔ نازیہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ وہ کچھ پل چپ رہی، پھر اپنی معصومیت بھری آواز میں بولی، فیضان، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر پاؤں گی؟ میں تو بہت نادان ہوں۔ فیضان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی نظروں میں بے انتہا پیار تھا۔ نازیہ، تمہاری یہ نادانی تو میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ دنیا کو سمجھدار بیویاں چاہیے ہوں گی، پر مجھے تو تم چاہیے، ویسی ہی جیسی تم ہو۔ تمہاری یہ معصوم باتیں، یہ نٹکھٹ سوال میرے دل کو سکون دیتے ہیں۔ تو میری زندگی کی وہ کہانی ہو جسے میں ہر روز نئی شروعات کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نازیہ نے دھیرے سے اپنا سر فیضان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ اب سے آپ کی شرٹس بالکل نہیں جلے گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ فیضان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شرٹس تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن تمہارا ساتھ میرے پاس ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور سنو، وہ اس کے کان کے پاس جھکا، اب چائے میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری مسکراہٹ ہی میری زندگی میں کافی مٹھاس گھول دیتی ہے۔ نازیہ نے کھلکھلاتے ہوئے اسے ہلکا سا دھکا دیا، پر فیضان نے اسے اور کس کر تھام لیا اور نازیہ اس کے سینے پر اپنی انگلیوں سے ہلکے ہلکے گول گھیرے بنا رہی تھی۔ اچھا فیضان، نازیہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکاتے ہوئے شرارت سے پوچھا، ایک بات سچ سچ بتائیے گا، جب میں کالج کی ڈریس میں پہلی بار آپ کے سامنے آئی تھی، تب آپ کے دل میں کیا لڈو پھوٹے تھے،
या फिर आप सोच रहे थे कि ये कौन सी बला गले पड़ गई है? फैजान उसकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया। सच बताऊं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि कोई नन्ही सी गुड़िया उठाकर मेरे कमरे में रख दी गई है। और जहां तक दिल की बात है तो लड्डू तो दूर, मेरे तो होश उड़ गए थे कि इस नासमझ बच्ची को कैसे संभालूंगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बच्ची लगती थी? नाजिया ने नकली गुस्सा दिखाते हुए अपना मुंह फुला लिया और उससे मुंह फेरने लगी। तो फिर अब क्यों संभाले हुए हो? वापस अपने घर भेज दीजिए। फैजान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में कस लिया, जैसे वो चाहकर भी हिल ना सके। उसके कान के पास झुककर वो धीरे और रोमांटिक लहजे में बोला, अब तो भूल जाओ कि जाने दूंगा। बच्ची थी भी तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे दिल पर पूरा अधिकार जमा कर बैठ गई हो। और वैसे, उसने थोड़ा और करीब आते हुए मुस्कुराकर कहा, अब तुम उतनी बच्ची भी नहीं हो मिसेस फैजान। नाजिया का चेहरा मारे शर्म के बिल्कुल लाल हो गया। उसने झेंपते हुए अपना चेहरा फैजान के सीने में छुपा लिया। आप बहुत बोलते हैं, हर बात पर चिढ़ाते हैं। अरे अपनी खूबसूरत बीवी से नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? फैजान ने प्यार से उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नाजिया के चेहरे पर ठहर गईं। वो मासूमियत, वो हल्की सी झिझक और आंखों में छुपा हुआ प्यार फैजान के दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था। फैजान, नाजिया ने धीरे कांपती हुई आवाज में कहा। फैजान का ध्यान पूरी तरह उसी पर था। वो हिबा ने यह भी कहा था कि जब शौहर ज्यादा रोमांटिक होने लगे तो उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। फैजान की भौहें उचकी। अच्छा, कैसी परीक्षा? नाजिया ने नटखट अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और थोड़ी ऊपर उठी। यही कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये साबित करने के लिए कल सुबह का नाश्ता आपको ही बनाना पड़ेगा। देखते हैं आपकी कुकिंग स्किल्स सिर्फ पास्ता तक सीमित है या पराठे भी बना सकते हैं। ये सुनकर फैजान जोर से हंसा। उसने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा, तो मेरी नटखट बेगम साहिबा, ये इम्तिहान भी मंजूर है। कल सुबह का नाश्ता फैजान शेफ ही बनाएगा। उस रात उनके बीच की सारी झिझक पिघलकर खत्म हो गई थी। एक दूसरे की बाहों में वो खुद की एक नई दुनिया बसा रहे थे। फैजान के लिए वो नाजिया का बचपन था जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रहा था, और नाजिया के लिए फैजान उसका वो सहारा था जिसे पाने के लिए उसने सारे सब्र को पार कर लिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जहां प्यार के अलावा और कोई जिक्र नहीं था। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि उम्र और फासले मायने नहीं रखते। अगर दिल के तार जुड़ गए हों तो एक बेहद सुकून भरी और रोमांटिक रात उनके खूबसूरत सफ़र की नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।